So when we say additive inverse, we are referring to the opposite of an integer. किसी भी integer का अगर आप sign change कर दो, you get the additive inverse. Yes, Ananya? मैम जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैम जब वो ब्रैकेट खोलनी होती है, मैम जब मैं शुरुआत से ब्रैकेट खोलती हूँ तब भी आंसर रॉन्ग निकलता है, और जब मैं शुरुआत में वैसे ही कर देती हूँ सिंपली तो भी मेरा गलत निकल जाता है. Can you send आंसर me your work, the questions you're talking about? आप मुझे WhatsApp पे भेजोगे मेरे पर्सनली नंबर पे? ग्रुप में मत भेजना, सेपरेटली भेजना. Okay. I will see कि क्या problem है, then I'll help you. So additive inverse means अगर हम किसी भी integer का opposite लिखते हैं, अगर आपके पास positive integer है उसको आप negative में convert कर दो, अगर negative integer है उसको positive में convert कर दो, you will get the additive inverse. Now additive identity refers to that special integer जिसकी addition से answer will be the number itself. हम किसी भी नंबर को किस इंटीजर के साथ ऐड करें दैट द आंसर शुड कम आउट टू बी द नंबर इटसेल्फ. ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको आप किसी भी वैल्यू के साथ अगर ऐड करते हो आंसर क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ. ऐसा इंटीजर है जीरो. दिस इंटीजर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो को आप किसी के साथ भी प्लस करोगे, द आंसर विल कम आउट टू बी द नंबर इटसेल्फ. आई होप एडिटिव आइडेंटिटी इज क्लियर. आई हैव रिटन हियर, मैंने -7 की एग्जांपल ली है. -7 में मैं जीरो ऐड करूं या फिर जीरो में -7 ऐड करूं, the answer will be the number itself. Now I want you to observe this relation. अगर आपके पास कोई integer है और उसका additive inverse, integer उसका additive inverse means उसका opposite, उन दोनों को अगर आप add करते हो तो आंसर क्या आता है? मैंने यहां पे integer लिया 7, उसका opposite होगा -7. इन दोनों को कर लो add, तो आंसर आता है 0. एंड 0 इज एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी. तो अगर हम किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करें, एडिटिव इनवर्स ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आएगी. I hope it's clear now. Anyone with questions, quickly let me know in the chat box if there is any question. Opposite of integer, additive inverse, ऐसा वैल्यू जिसको प्लस करने से आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, उसको बोलना है एडिटिव आइडेंटिटी, दैट विल बी जीरो. अगर आप इंटीजर के साथ उसके ऑपोजिट को प्लस करते हो, आंसर कम्स आउट टू बी जीरो. तन्वी, अनम्यूट एंड आस्क. Beta, I'm not able to hear you. I think your microphone is not connected if you're using headphones. मैम क्या A little break हो गई आवाज बेटा आपकी फिर से. If you're using headphones, try to reconnect. I still can't hear you. Okay, the note says any integer. मैम प्लीज अगेन एक्सप्लेन द नोट. Yeah, sure. Any integer added to its additive inverse will give you the answer as additive identity. आप कोई भी integer ले लो, कोई भी integer. Let's take a negative integer this time, -12. I have taken an integer -12. I want to add the additive inverse of this number to itself. Additive inverse, -12 का additive inverse opposite होगा. अब इनको ऐड करो एंड टेल मी व्हाट द आंसर इज.
Right, Gurshan Kaur? Yes. Yes. Right, Sumaira. Very good, Gursimran. The answer of this expression comes out to be 0. और 0 is called, 0 को हम क्या रेफर करते हैं? द नेम वी हैव गिवन टू 0. अभी ऊपर लिखा है आपने, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. This is what the note says. Any integer plus the additive inverse. Answer will be additive identity. Tanvi, is it clear now? Anhad? Ma'am, can you scroll up? Beta, I have already shared the PDF for this. Are you writing down? You just join now. Ma'am, I am writing down. Ananya? Yes, Molly, it's the same work I've sent yesterday. It's the same work. I was just discussing the part left. Ashit, I will send the file again. I did send yesterday also. Any additive inverse, कोई भी नहीं add करना, जो integer है उसका opposite. The integer with its opposite, उसी का opposite उसमें add कर दे, तो आंसर 0 आता है. किसी भी इंटीजर में आप उसी का ऑपोजिट अगर ऐड करो, आंसर कम्स आउट टू बी 0. मनमीत? I will not present yesterday. Ma'am, हमने any integer added है मैम, यहाँ से start करना है. Beta, I'm not sure if you have noted down yesterday's work. This is the same as the one मैंने जो कल काम भेजा था. ये वही काम है. तन्वी बेटा आपने अनम्यूट किया है. Could you tell me if it is clear? I'm still not able to hear you. Maybe it's some problem. Try to leave the meeting and connect again. I will share the syllabus in your group. Don't worry, Arman. Okay, so if anyone is left now to note down this work, I will send the file again. You may note this down. I'm going to start with the questions of the exercise. Just turn to page 9 in your textbooks. Turn to page number 9. We have exercise 1.2. There are a few questions here. Additive inverse is opposite, Jivitesh. किसी भी इंटीजर का जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट का मतलब है आपको उसका साइन चेंज करना है. अगर वो प्लस का है उसको माइनस का बना दो, अगर वो माइनस का है तो उसको प्लस का बना दो. और अगर हम इंटीजर और उसके ऑपोजिट को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है. Question number 1. Write down a pair of integers whose sum is -7. Yes, Jivitesh, in any order. Addition is commutative. Addition को हम किसी भी order में perform कर सकते हैं. तो अगर आप integer के साथ उसका opposite add कर रहे हो, आंसर 0 आएगा. उल्टा लिख दोगे तो भी आंसर 0 आएगा. Opposite पहले लिख दो, integer पीछे लिख दो, तब भी total 0 बनेगा.
Now for first question and second question, I want you to keep one thing in mind. You have to do this with trial and error. Trial and error is like guesswork. तो आप खुद ऐसे integers guess करोगे for which the sum should be -7. Yes, Ashit, subtraction is not commutative. Subtraction में हम order नहीं change कर सकते. Right? For question number 1 and question number 2, multiple answers possible हैं और आपको ऐसे integers लिखने हैं जिनका जो sum आएगा वो -7 आएगा. When you write down the example, please make sure that you are checking your work. Yes, Ashit, in addition, we can change the order. I will show you the first one and then I think it will be clear how to write down the answer. Write down alongside. This is question number 1, A part. We want to write down two integers for which the sum is 7. Gursimran, your integers, unka answer -1 banega. Damandeep, yours is right. Sia is giving the answer for the second one, I think. Let's wait. Do it one at a time with me. Yes, Gurshan, your answer is also right. Two integers with sum equal to -7. Answer can be -4, -3. सम चेक करो इनका, -4 और -3, इनको प्लस करो. -5 and -2, because they have the same sign, 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 7 और आंसर आएगा नेगेटिव साइन के साथ. मनरीत, yes, you can take positive and negative also. अगर आप इनको भी ऐड करते हो. Yes. -12 and 5. You can write any one of these. Ashit, exercise 1.1, last question has been deleted. गुरसिमरन बेटा, आपने इकट्ठा लिखा है, कॉमा डाल के बताओ, सेपरेटली बताओ कौन कौन से इंटीजर्स होंगे. Ryan, Ma'am, can you explain me question 1 A part? question number 1 A part, beta, we are trying to think of two integers such that उनका sum -7 बने. कोई भी ऐसे दो integers. It's trial and error, आपको खुद सोचने पड़ेंगे ऐसे numbers. Sum जिनका -7 बने. So I have written here 4 such pairs. मैंने 4 possible answers लिखे हैं और हर केस में आंसर क्या बनता है, -7 बनता है. और भी possible हैं, आपको कोई एक लिखना है. Right, Gursimran? Right, Manreet? Right, Gurshan? 0 and 10. Gurshan Singh, very good. 0 and 10. आप इनका difference लिखो. For difference, हम क्या करेंगे, 0 और 10 के बीच में नेगेटिव लगा देंगे. Subtraction sign. आंसर आएगा -10. If you take -6 and 4, difference -6 और 4 के बीच में subtraction sign. -6 -4 will be -10. -5 -5 ओके नहीं होगा बेटा, -5 और 5 चलेगा.
-5 and 5. Gunjanpreet, -5 and 5. You will have subtraction in between. Manmeet. मैम प्लीज थोड़ा सा ऊपर करना स्क्रीन को. Here. ओके मैम. Tanvi. Ma'am, I was unable to listen your voice due to network issue. Can you explain it again? Okay. The part where you have to write down the note part. Or this question. Yes, ma'am. Beta, you're asking about the note or the question? Ma'am, question. आपको यहाँ पे इस तरह के इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम उन्होंने आपको स्पेसिफाई करके बताया है -7 बनना चाहिए. कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स जिनको अगर आप एड अप करो तो आंसर -7 आए. और मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 4 आंसर्स लिखे हैं, -4 -3. मैंने ऐड करके भी शो किया है. -4 और -3 का सम क्या आता है? -7 आता है. आप अपनी तरफ से गेस करके खुद सोच सकते हो. ऐसे इंटीजर्स जिनको आप प्लस करो, द आंसर शुड कम आउट टू बी -7. सेम वे इन द सेकेंड मैम पहले पार्ट. हमने मैम पहले हमने इंटीजर्स भी शो करना और सम भी शो करना है. Yes, you have to show the calculation to prove your point कि आपने जो यहाँ पे values लिखी हैं उनका sum उतना ही बनता है जितना वो कह रहे हैं. आपका आंसर चेक हो जाएगा. आप लिख दोगे लेकिन अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो हो सकता है कि आपका आंसर रॉन्ग हो. So doing this work on the side will ensure कि आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया. ओके मैम. मैम हम इनमें से कोई वन भी लिख सकते हैं? Anyone, you have to write anyone, not all. ओके मैम. Just a minute. ओके मैम. The थैंक यू. students, you're welcome, beta. Hargun, unmute and ask. Ma'am, can you please scroll up to the note for 1 minute? Okay. Sia, unmute and ask. Ma'am, in first part, ma'am, there is written plus 14, comma, -12, 21. Ma'am, मैम there is written sum. मैम हमको ऐड करना है मैम, पर ये 14 and 21 तो माइनस होंगे ना? बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऑपोजिट साइंस के है ना, तो चाहे बीच में एडिशन लगी हुई हो, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन हो जाएगी उनकी. इंटीजर्स के बारे में बेटा एक बात थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है कि जब क्वेश्चन में वो बोलते हैं प्लस करो या माइनस करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे इंटीजर्स का साइन क्या बन जाएगा. व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सम और फाइंड द डिफरेंस, काम करते वक्त इंटीजर्स का साइन क्या बन जाता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि उनको प्लस करना है कि माइनस करना है. ओके मैम. सी आप बोल रहे हो कि -14 इज प्लस, सॉरी इट्स +14 एंड -21. मैंने तो बिगिनिंग में इनके बीच में एडिशन ही लगाई थी. ये देखो बीच, इन दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया. आई वांटेड टू ऐड देम, बट जब ब्रैकेट खुली, व्हेन आई रिमूव्ड द ब्रैकेट, तो बीच में कौन सा साइन आ गया? माइनस का आ गया. और मेरे इंटीजर बन गए ऑपोजिट साइंस के, तो मुझे इनको माइनस करना पड़ा. तो मैम ये सिर्फ एडिशन में ही हो सकता है? एडिशन में ही हो सकता है? It could happen in subtraction also कि हम शुरुआत करें माइनस के साथ, लेकिन बाद में साइन चेंज हो जाए और हमें उनको प्लस करना पड़े. ओके मैम. एकमप्रीत, -6 और 4 का डिफरेंस लिखना है आपको. तो -6 और 4 के बीच में डिफरेंस का साइन लगाना है. डिफरेंस का साइन कौन सा होता है?
सब्ट्रैक्शन वाला माइनस का साइन, तो दोनों के बीच में जब माइनस लग गया, यहां पे आप ऑब्जर्व करो, बोथ नाउ आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन के होंगे तो 6 और 4 ऐड हो जाएंगे, टोटल बनेगा 10, बट आंसर आएगा विद माइनस साइन। स्टार्टिंग देखो मैंने डिफरेंस ही कैलकुलेट किया था, बट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द इंटीजर्स आई हैड टू ऐड देम। Very good, Jivitesh. You've given such a large number. Can you think of it? Is it negative 1 lakh and positive 99,990? Wonderful. Okay. I hope all of you have done A part. C part, I want two integers with sum as 0. अब अपना नोट यूज करो। अभी जो नोट आपको मैंने लिखवाया था, कौन से ऐसे दो इंटीजर्स है जिनको प्लस करें तो आंसर 0 बन जाए? Take any integer and its opposite. The sum will be 0. So you can take 5 and minus 5. You can take 10 with minus 10. You can take minus 12 with 12. Any of these, the answer will be 0. Minus 2, 2. One positive, one negative. Opposite. Yes, very good. Inverse, additive inverse. Specify. Don't just say inverse, say additive inverse. Minus 100 or 100. Wonderful. 4 minus 4. Minus 2, 2. 0 cannot be taken because you want two different integers. Right, Gurshan Kaur, you can take any large number, जितना मर्जी बड़ा ले लो, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ. Ashit, which part? Angadmeet, बेटा साइन डालना भूल गए आप. You've written both positive. B part, two integers whose difference is minus 10. Think of any two integers और उनके बीच में माइनस साइन लगा के सॉल्व करो. The best way is, अगर आपके माइंड में ऐसे इंटीजर्स आ रहे हैं, you think कि ये पॉसिबल आंसर है, वर्किंग कॉलम में ना क्विकली कैलकुलेट करो उनका डिफरेंस, और डिफरेंस बोल रहे हो तो दोनों के बीच में ना माइनस लगा के फिर आंसर फाइंड आउट करो कि -10 बनता है या नहीं बनता. ओनली देन वी कैन मेक श्योर कि हमने जो पेयर गेस किया था इट्स करेक्ट. राइट रेयान? रेयान बेटा, विच पार्ट यू आर आंसरिंग? मनमीत? Excuse मैम, I have a doubt. मैम अभी जब मैम जीवितेश ने आपको वो आपने बोला था लार्जेस्ट नंबर दिया, मैम वो हमें क्यों नहीं सुनाई दिया? He is writing in the chat box. Okay. The students are writing the answers in the chat box. I'm reading alongside. Ryan? Yes, you can give more than one, but we need just one. हमें देना सिर्फ एक ही पेयर है, but multiple answers possible है यहाँ पे. Yes, Molly? अगर नहीं लगा हुआ किसी के साथ साइन तो हम खुद लगा सकते हैं. Let's do the next one. Second question of the exercise. First part, a pair of negative integers. In question number 1, आप अपनी मर्जी से integers ले सकते थे. Positive, negative, any numbers of your choice. Yes, Ashit. All of these will add up and give you the answer 0. आपको सिर्फ एक पेयर लिखना है. मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं और भी पॉसिबल हैं. Has everyone completed first question? If there's anyone who is still writing down the answer for first question,
Okay. So I can scroll up, I hope. No, single नहीं लिखना, लिखने दोनों हैं. Pairs में आंसर देने हैं आशित. Either the first pair or the second pair or the third pair. Yes, Ryan. Think of two integers. दोनों के साथ माइनस लगा होना चाहिए, बीच में भी माइनस होना चाहिए, आंसर 8 बनना चाहिए. ट्राई. Right. Jivitesh, your answer is right. Arman, right. Sia, both should be negative. Yes, Ashit, आप orally mind में सोच सकते हो, बिल्कुल. Pair of integers. I have written pair. No, Angad Meet. One is positive, one is negative. आपको दोनों negative लिखने हैं. Think of these. Take a look. -4, -12. दोनों negative होने चाहिए. Both integers should be negative. आशित, इनको माइनस करो, देखो आंसर क्या आएगा. Okay, Tanveen. Right, Samira, your answer is right. -4, minus and minus become plus, and then the answer comes out to be 8. Right, Yuvraj. Another example could be -3, -11, -5, -13. Now, there is one very easy way to guess the answer for this. What you can do is, on the number line, everyone just look at the screen. How do you answer this? कैसे सोचोगे? It's not that you can keep guessing and keep checking. So think of any negative integer. Negative integers आपको मिलते हैं नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे. तो लेफ्ट साइड से कोई भी नेगेटिव इंटीजर पिक कर लो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर पिक कर लो और उससे 8 स्टेप्स पीछे चले जाओ और पीछे चले जाओ. पहले नेगेटिव साइड में जाओ, कोई इंटीजर पिक करो, फिर उससे 8 स्टेप्स और पीछे जो इंटीजर आएगा वो पिक कर लो. यू विल गेट 2 इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव होंगे और उनका जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा. -1 से अगर लिखते हो 8 स्टेप्स दूर मिलेगा -9. -2 अगर लेते हो 8 स्टेप्स दूर मिलेगा -10. आई होप दैट हेल्प्स. रीड योर क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आपको जो इंटीजर्स लिखने हैं दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ होना चाहिए. और फिर जब आप डिफरेंस लिखोगे बीच में एक नेगेटिव और आ जाएगा. 0 आप ले सकते हो लेकिन आप नेगेटिव इंटीजर्स में 0 नहीं ले सकते पार्थ. अगर वो बोल रहे हैं कि आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है, आप 0 नहीं ले सकते. अगर उन्होंने कहा था कोई भी इंटीजर चलेगा तो 0 ले सकते हो. नंबर लाइन पे मैंने आपको ये बोला है, इफ यू आर टेकिंग एनी नेगेटिव नंबर, वो आपको 0 से पीछे मिलेगा, 0 की लेफ्ट पे मिलेगा. तो 0 की लेफ्ट पे
आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर अगर पिक करते हो, लेट अस से यू टेक -1, तो -1 से 8 स्टेप्स पीछे जाओ, you will get -9. So -1 and -9. The difference is 8. That's why I'm saying 8 steps. कितनी दूर जाना है आपको, जितना डिफरेंस है उतनी दूर चले जाओ. तन्वी बेटा 4 और -4, पहला 4 पॉजिटिव है, दूसरा 4 नेगेटिव है, ऑपोजिट हो गए ना ये. You want both of them to be negative. -6, -14, right, Gurshan? Manreet, I think, is giving the answer for the next part. That's right. B part, we want to write down one negative integer yes, good Simran. अगर आपको 4 का डिफरेंस बनाना है तो हम 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे. सिया, मैम ये जो आपने अभी नंबर लाइन का बताया है, अगर हम 1 से लेकर 9 तक जाएंगे -9 आ जाएगा. 1 नहीं मैम लेना 8 ना, स्टेप्स पीछे. नेगेटिव, नेगेटिव लेनी है. मैम यस मैम, -1 से लेकर हम अगर 8 स्टेप्स पीछे जाएं तो मैम -9 आता है. मैम वो भी ठीक है. 8 कैसे आएगा? अच्छा डिफरेंस मैम 8 यस. ये देखो, सॉल्व करके चेक कर सकते हो. -1 और -9, इनका चाहिए आपको डिफरेंस. सॉल्व करो जरा. ब्रैकेट ओपन होगी, ओके मैम. राइट? ओके ओके मैम. नाउ फॉर मैम द हम सेकंड, सिर्फ इधर ही कर सकते हैं नंबर लाइन. बिकॉज हमें नेगेटिव लेने हैं तो मैं नेगेटिव की तरफ ही रहूंगी ना. राइट को चले गए तो हम पॉजिटिव नंबर्स में चले जाएंगे, वो नहीं ना लेने हमें. एकमप्रीत, डिफरेंस जब लिखते हैं लार्जर पहले, माइनस द स्मॉलर. जहां से शुरू कर रहे हो वो पहले आएगा, जितना पीछे जा रहे हो वो बाद में आएगा. एंड यू कैन ऑलवेज सॉल्व एंड चेक. मौली बेटा ए पार्ट की बात कर रहे हो आप, विच क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन? Second question का A part. You want to pick any two negative integers for which the difference is 8. So I have simply said कि आप अपने negative integers को mind में रखो. Number line imagine करो अपनी. Number line पे आप जब negative integers शुरू होते हैं जहां से, वहां से कोई भी negative integer pick कर लो. पहला integer आपकी मर्जी का होगा. -1, -2, -3, -4 ऐसे आपके नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं. आप कोई एक इंटीजर खुद पिक कर लो. सेकेंड इंटीजर जो होगा वो उससे 8 स्टेप्स और पीछे होगा. यू मे ड्रॉ द नंबर लाइन एंड इवन देन पिक योर इंटीजर्स. आप ड्रॉ करके भी पिक कर सकते हो. हर्षीन, हाँ जी आपका आंसर करेक्ट है, -1 एंड -9. यू कैन टेक दैट पेयर. I hope it's clear, Molly. Right, -2 and -10. That's right. Okay, now look at B part. They are saying take one negative integer and one positive integer. Sum is -5. मीन्स आपका जो पहला इंटीजर होगा वो माइनस के साथ होगा. लेट मी जस्ट राइट इन ब्रैकेट्स, आई थिंक दैट विल हेल्प. एक वैल्यू आपको लिखनी है माइनस के साथ और एक वैल्यू आपको लिखनी है प्लस के साथ.
इनका आपको लेना है सम. The answer should come out to be -5. Now think. I've got so many answers here. Let's start with the one. Manreet is saying take -6 and 1. So अगर मैं लेती हूँ -6 और 1, इनका सम चेक करो. -6 और 1 के बीच में add. The answer will be 5 with the minus sign. So this is correct. Right, Jivitesh? -1 lakh and 99,000. That should be with plus sign. उसके साथ माइनस नहीं आएगा. Okay. But then in the Jivitesh, you are changing the sign of 1 lakh, तो आपका आंसर +5 बन जाएगा. आपको दूसरे नंबर का साइन चेंज करना है. Right, Gunjanpreet? -10 and 5 is correct. -10 and 5. -10 and 5 added give you 5 with the minus sign. -7 and 2. -7 and 2. -7 plus 2 will give you -5. Write any one. Molly, I think I missed your answer. Wait, Molly. Yes, Molly, it's right, beta. Yes, it's correct. पार्थ बेटा दोनों नेगेटिव लिए हैं आपने. एक माइनस का एक प्लस का लेना है. गुरसिमरन नहीं बेटा, -3 + 2 -1 बनेगा. सॉल्व करके